پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے، اور تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے، اور طریقی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو، کیونکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا اور سنا جانا اور عمل کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ کتنے لوگ وہ پورے 10 دن میں ہمارے ساتھ شریک تھے؟ کتنے لوگ تھے؟ کسی کی آنکھ ٹھنڈی تو نہیں پڑی؟ ہاں، روح القدس کی آنکھ ٹھنڈی تو نہیں پڑی؟ پکی بات ہے، دعا کر رہے ہیں۔ اور آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ جس طرح ہم 10 دن خداوند کی حضوری میں چلتے رہے، کیا کرتے رہے؟ چلتے رہے، اسی طرح ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم صرف یہ 10 دن نہیں بلکہ ہم ہر روز، ہر لمحہ ہمیں کس طرح چلنا ہے، کیونکہ روحانیت جو ہے یہ رکنے کا نام نہیں ہے۔ اس وقت تک جب تک ہم اس وجود میں ہیں، جب تک خدا نے ہمیں زندگی دی ہوئی ہے، جب تک ہم اس دنیا میں مسافر ہیں، جب تک ہم اس سفر کو پورا نہیں کر لیتے، اس وقت تک ہمارا یہ چلنا اسی طرح چلتا رہے گا۔ لیکن اگر ہم کسی وجہ سے رک جاتے ہیں، خدا کیا چاہتا ہے ہماری زندگیوں سے، خدا کیا تقاضا کرتا ہے ہماری زندگیوں سے، کہ ہم چلتے رہیں یا کچھ دنوں کے لیے رک جائیں۔ اگر جسمانی طور پر دیکھتے ہیں تو ہم اگر کوئی کام سارا دن بہت زیادہ کرتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں اور ہم رک کر کیا کرتے ہیں؟ آرام کرتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن اس روحانیت میں آرام کہاں پر ہوگا؟ آسمان پر آرام ہوگا، زمین پر نہیں ہے۔ اس کا آرام آپ کو سکونت، تسلی، اطمینان آسمان پر ہی ملے گا۔ آمین۔ اس طرح پولس رسول جب افسس کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے، ان ایمانداروں کو خط لکھتا ہے، تو ان ایمانداروں کو خط لکھتے ہوئے یہ بتاتا ہے کہ تم پہلے تاریکی میں تھے، گناہ میں تھے، گناہ میں زندگی بسر کر رہے تھے، تاریکی میں زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن اب وہ التماس کرتا ہے افسس کے لوگوں کو جو خدا میں آ کر، مسیحت میں آ کر ان کا چلنا جو تھا، ان کا چال چلن جو تھا وہ ٹیڑھا ہو چکا تھا، درست نہیں تھا۔ اس لیے پولس رسول کو یہ خط لکھنا پڑا، اور خط یہ قید کی حالت میں یہ خط لکھا گیا وہ لوگوں کو، ان لوگوں کو جو مسیحت میں آ چکے تھے، جو بپتسمہ لے چکے تھے، جو اس میں آ کر زندگی بسر کرنا شروع کر دی تھی، چلنا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ لوگ جو تھے وہ دوبارہ طریقی میں جا رہے تھے۔ اس لیے پولس رسول کو یہ خط لکھنا پڑا کہ کیونکہ تم پہلے طریقی تھے، اس کا مطلب کہ پہلے تھے، اس کے بعد انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، پہلے تم طریقی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، پس وہ کہتا ہے کہ اب تم کو ضرورت کیا ہے کہ نور کے فرزندوں کی طرح چلو۔ نور کے فرزند، روشنی کے فرزند جو
गुनाह से पाक हो चुके हैं, उनकी बात करता है कि नूर के फर्जंदों की तरह चले। आज जो हमारा मजमून है यह है कि मसीही लोगों का, ईमानदारों लोगों का चलना, जो ईमानदार, जो मसीहत में आ चुके हैं, उनके लिए खत लिखा गया। उनके लिए पौलुस रसूल इस बात के लिए इल्तिमास करता है कि नूर के फर्जंदों की तरह, जिस तरह नूर के फर्जंद चलते हैं, रोशनी के फर्जंद चलते हैं, जिनके बातन रोशन हो चुके हैं, मसीहत में आकर बपतिस्मा लेकर जब वो टेढ़ी चाल चलते हैं, तो याद रखें खुदावंद को ये पसंद नहीं। खुदा भी इल्तिमास करता है कि अब तुम नूर के फर्जंदों की तरह चलो, यानी उस रोशनी में जिसमें खुदा में आपको रोशनी दी गई है, कलाम की रोशनी में चलो। हम सब देखते हैं कि जब अंधेरा होता है तो हमें लाइट की जरूरत होती है। जहां पर शदीद अंधेरा होता है, अगर हमारे पास कुछ नहीं मोबाइल है तो हम मोबाइल की लाइट ऑन करते हैं ताकि हमें रास्ता नजर आ सके, ताकि हम एहतियात से अगर कोई खड्डा है या पानी है कुछ भी उसको पार कर सके देखकर। लेकिन अगर हमारे पास लाइट नहीं तो याद रहे कई दफा हम उसमें गिर भी जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? इसलिए हमें लाइट की जरूरत होती है। ये लाइट वो लाइट है, ये कलाम की है। ये इस लाइट को लेने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है कि हम खुदा के साथ रफाकत रखें, उस वो चाल चले जो खुदावंद को पसंद है। क्योंकि खुदा किस तरह की चाल चलता है, तो खुदा किस तरह की चाहता है कि हम चाल चले। मोहब्बत की चाल चाहता है, रास्तबाजी की चाल चाहता है, नेकी की चाल चाहता है, सच्चाई की चाल चाहता है और मोहब्बत की चाल चाहता है। लेकिन हम इन तमाम चीजों में से जब गुजरते हैं तो हमारी जिंदगी किस कदर इसके मुताबिक होती है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बाइबल ये कहती है, पौलुस रसूल ये बयान करता है कि दनाई से चलो। दना आदमी जो है ये सोच समझ कर चलता है, बेसोचे नहीं चलता, पहले सोचता है फिर चलता है। दनाई की चाल खुदा ये पसंद करता है। खुदा हमारी जिंदगियों से ये तकाजा करता है कि हम दनाई की चाल चलें। दनाई की चाल चलने से ठोकर नहीं होती, नुकसान नहीं होता। और पौलुस रसूल इस बात को लिए बयान करता है कि ऐ सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो तुझ पर मसीह का नूर चमकेगा। सोने वाले, गफलत की नींद सोने वाले, आप खुदा उनसे इल्तिमास करता है, पौलुस रसूल उनसे इल्तिमास करता है कि ऐ सोने वाले जागो, दुआ करो। यीशु मसीह ने भी कहा कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हम कब, किस वक्त हमारी चाल टेढ़ी हो जाती है? जब हम यीशु मसीह से रफाकत रखना बंद कर देते हैं, जब गफलत की नींद सो जाते हैं, रूहानी नींद सो जाते हैं, तो फिर खुदा हमें ये कहता है, जिस तरह खुदा का बंदा पौलुस रसूल ये कहता है कि ऐ सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो तुझ पर मसीह का नूर चमकेगा। उसका नूर, उसका कलाम हमारे अंदर उस वक्त आता है जब हम गफलत की नींद से उठकर खुदा के पास आते हैं, खुदा के साथ रफाकत रखते हैं, अपना चाल चलन दुरुस्त रखते हैं, अपने रवैयों को दुरुस्त रखते हैं। ये हमारा चाल चलन है। जब हमारा चाल चलन ठीक नहीं होता तो हमारी रफाकत जो है खुदा से टूट जाती है। इसलिए हमें इस बात की जरूरत है कि हम तनाई की चाल चले। जिस तरह हम देखते हैं 15वीं आयत में लिखा है बस, क्योंकि जब पौलुस रसूल उनसे गुफ्तगू करता है, खत के जरिए गुफ्तगू करता है कि पहले तुम तरीकी थे, लेकिन अब तरीकी में जिंदगी बसर ना करो, अब अंधेरे में जिंदगी बसर ना करो, अब बुत परस्ती की जिंदगी बसर ना करो। हम सब इस बात को जानते हैं कि इफिसस के अंदर एक बड़ी देवी अर्थमस देवी थी, जिस पर ईमानदार भी जाते थे, बहुत सारे ऐसे लोग जाते थे और जाकर उस बुत परस्ती को पूजते थे। और आज लेकिन पौलुस रसूल ये बयान करता है कि तुम बुत परस्ती ना करो, तुम उनके पास, बुतों के पास ना जाओ, तुम गुनाह की जिंदगी बसर ना करो, क्योंकि तुम पहले गुनाह में
थे, लेकिन अब गुनाह से निकल चुके हो, अब मसीहत में आ चुके हो। इसलिए अब गौर से देखो कि तुम किस तरह चलते हो। अपनी जिंदगी पर गौर करो कि आपका चाल चलन कैसा है, आपका रवैया कैसा है। पौलुस रसूल ये बयान करता है कि बस खुदा के ताबे हो जो, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। ये याकूब के खत में ये लिखा है। लेकिन पौलुस रसूल ये कहता है 5वें बाब की 15वीं आयत में कि बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की चाल चलो। दाना सोच समझ कर चलता है, लेकिन बेवकूफ बेसोचे समझे चला जाता है। लेकिन दानाई की का रास्ता है वो हमवार रास्ता है, लेकिन जो नादानी का रास्ता है वो उखड़ा हुआ रास्ता है, और लोग उसमें जब चलते हैं एक चाल टेढ़ी हो जाती है। लेकिन खुदा ये चाहता है, और पौलुस रसूल ये बयान करता है कि अब गौर से देखो कि किस तरह चलते। अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है कि हम किस तरह चल रहे हैं। ये इफिसस के लोगों को ये खत लिखा गया, उनको कहा गया कि बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानद चलो। लेकिन आज वो हमसे सवाल करता है, आज पौलुस रसूल हमसे इल्तमास करता है, आज खुदा हमसे ये इल्तमास करता है कि अपना चाल चलन दुरुस्त रखो, दानाओं की मानद चलो, दनाई की चाल चलो, मोहब्बत की चाल चलो, और रास्तवादी की चाल चलो, नेकी की चाल चलो। लेकिन हमने आज अपनी जिंदगी पर देखना है कि हमारी चाल कैसी है। मेरे अजीजों, अक्सर औकात हम बपतिस्मा भी ले लेते हैं, लेकिन अक्सर औकात हमारी चाल ठीक नहीं रहती, कलाम के मुताबिक नहीं होती। लेकिन पौलुस रसूल इफिसस के कलीसिया को 4 बाब की पहली आयत में ये बयान करता है कि बस मैं जो खुदावंद में कहती हूं, तुमसे इल्तमास करता हूं कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो, यानी कमाल फरोतनी और हिलम के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। सबसे बढ़कर कि हम जिस बुलावे से बुलाए जाते हैं, बड़े जज्बात में आकर बहुत सारे लोग बपतिस्मा भी ले लेते हैं, मसीहत में आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद ना तो तहम्मुल होता है, ना फरोतनी होती है, ना ही हिलम होता है। तो याद रखें, और फिर क्या होता है, मोहब्बत भी खत्म हो जाती है। लेकिन खुदा हमारी जिंदगियों से मोहब्बत का तकाजा करता है कि हम एक दूसरे की बर्दाश्त करें। हम इसी तरह जब चलना शुरू कर देते हैं तो उसमें हमारी मोहब्बत की बजाय हसद आ जाता है। हम हसद की चाल चलना शुरू कर देते हैं, मोहब्बत को तर्क कर देते हैं, मोहब्बत को छोड़ देते हैं, नेकी करना छोड़ देते हैं, और रासबाजी को छोड़ देते हैं। हिलम हमारी जिंदगी में नहीं होता, हम हलीम नहीं होते, बल्कि हलीम होने की बजाय हम घमंड हो जाते हैं। ऐसी चाल जो है खुदा पसंद नहीं करता, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है, पौलुस रसूल बयान करता है कि यकीन यानी कमाल फरोतनी और हिलम, कमाल फरोतनी और हिलम के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। और ये इसी तरह इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के साथ बंद में बंदी रहे। आज गौर करें अपनी जिंदगी पर।